An ant and an elephant walked into a bar graph. This is for people who said my classes are not entertaining. Sir, थोड़ा jokes बोलो. मेरे को ऐसे वाले आते हैं. On a more serious note, guys, welcome to the fifth lecture in the foundation batch for LRDI. Today we are going to do bar graphs. This is going to be extremely interesting क्योंकि हम एक flow में जा रहे हैं. Right, we are done with introduction and essentials, we are done with tables, we are done with pie charts, and now we are moving on to bar graphs. That basically means that we are moving closer to completion of DI, right? Chalo, let's get this thing started. Today we are going to do very simple stuff, right? We're going to learn what a bar graph is and how to read it. Yes, and we're going to do two example sets. Yes, please note guys, ये वाले जो सेट हम करने वाले हैं in this class, these are not going to be a part of your DPPs, daily practice problems जो है उसमें ये वाले नहीं रहेंगे. That means those are fresh ones. I want you all to try those questions. ठीक है, DPPs try करें, solve करें, and if you have any questions or queries, feel free to drop it in the comments. ठीक है, चलो, let's get started. Let's talk about bar graphs. Very simple. Bar graphs are obviously more visual graphs. These are meant for not just to show data, है ना, show data बताना है तो वो टेबल में हो जाता है, but bar graphs are used to talk about trend, to talk about comparison. Yes, when you have two or more values and you need to compare them, when you have two or more say divisions or products or prices or anything, right, when you have to compare them, when you want to visually show how one value is larger than the other, or how a value has increased and then dropped and so on, right? That is what a bar graph is for. Yeah, there are two ways in which a bar graph could be used. One is your vertical ones. Yes, these are also called your column graphs. Okay, and the horizontal bar graphs. Yes, they are basically the same. It's just x-axis, y-axis ko they've just flipped it. That's it. Okay, chalo. Obviously, don't worry, we are going to take examples. पहले मैं समझाऊंगा बार ग्राफ कैसे पढ़ते हैं. We'll do that example part, and we will also solve some two sets. Yes, interesting ones. Chalo. So how are you supposed to read a bar graph? Very simple. It's going to be a chart right in front of you. But sometimes there would be elements, there would be a few things that you need to know beforehand, है ना? तो क्या करेंगे? To understand those, you're going to read the instructions. Yes, instructions, question statement, जो भी दिया हुआ है, please read it very very carefully, understand what each element in the chart is talking about. Yes, then after while you are reading the instructions, simultaneously have a look at the chart as well, क्योंकि आपको comparison करने में जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगा what the instructions are trying to tell you, right? While you are reading the instructions, it is always safe कि आप बाजू में चार्ट को रखें और compare करते रहें डेटा को, right? Read a part of the instructions, check if you can find those in the given chart, in the given bar graph. Yes, so you read the title. It's very important. A lot of people miss out on it. वो सोचते टाइटल क्या ही पढ़ना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ केसेस, इन अ लॉट ऑफ केसेस कई ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुड बी गिवन इन द टाइटल, जैसे यूनिट हो गए, स्केल हो गए, या क्या ये सही चार्ट है. इफ देर आर मल्टीपल चार्ट्स, एम आई लुकिंग एट द राइट काइंड ऑफ चार्ट, राइट? वो सब जरूरी है. सो रीड द टाइटल केयरफुली. नेक्स्ट, सिंस दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राफ, तो यहाँ पे एक्सेस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंटेड है एंड वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंटेड है, राइट? नेक्स्ट, लेबल या की बोलते हैं हम usually when it comes to bar graph, right? Do not forget to read the key carefully. Sometimes colors could be used, sometimes particular types of shading could be used, or any patterns could be used. तो आपको ये ध्यान में रखना है that you compare and check. Sometimes the given order in the key may not match with the given order in the chart. जो order में यहाँ पे A B C दे रखे हैं, but chart में जो है C है, फिर A है, फिर B है, it could be like that. So you have to be careful enough to read that. Yes. Next, very important, look out for scales and units. You miss out on this, you lose out easy marks. Yes, common mistakes है, simple से mistakes you end up making with respect to scales as well as units. And towards the end, when you're looking at the graph, क्योंकि data, you can't remember data, right? So what you can do is you can analyze the trend. कि देखो, right? Give it some time, give the chart some time, figure out कि क्या चल रहा है. Is the price increasing? Is it decreasing? If there is any specific price or any specific a bar that is too high or too low, yes, go figure that out. See if there's something missing, है ना? ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है while reading the instructions and looking at the chart. Yes. Done. How to read a bar graph? Yes, we'll take an example. I'm going to give you one of each kind. So let's have a look at the vertical bar graph first, जिसे column graph बोलते हैं, right? ये रहा आपका x axis.
देखो एक्स एक्सिस में क्या है, 4 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 2 3 एंड 4, राइट, 4 कैटेगरीज आर देयर। इन ईच कैटेगरी, कैटेगरी 1 में अगर आप देखोगे वी हैव 3 बार्स। यस, व्हाट आर दीज? सीरीज 1 है ब्लू वाला, ऑरेंज इज सीरीज 2, येलो इज सीरीज 3। यस, इन दिस चार्ट द ऑर्डर इज मेंटेन, ब्लू ऑरेंज येलो, ब्लू ऑरेंज येलो, ब्लू ऑरेंज येलो। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस का। अब देखेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है, देयर आर नंबर्स गिवन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 6। यस, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 तक का जा रहा है। द ग्राफ इज गिवन टिल 6। ईच लाइन, राइट, ईच लाइन represents 1 unit. This could be anything. Let's say this is number of viewers per second. ठीक है, सीरीज 1 का नंबर ऑफ व्यूअर्स पर सेकेंड है ये। तो सीरीज 1, कैटेगरी 1 में सीरीज 1 के 4.5, राइट, दिस इज 4.5, सो 4.5 व्यूअर्स है पर सेकेंड, 2 viewers per second for series 3। so x axis में categories दे दी है, yes, and we've been given with the bars with the series, and in the y axis we've been given some data numbers, right। तो यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ that this is number of viewers per second का। yes, moving on here, so यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको, things that you should definitely keep in mind is to read the chart title। ये रहा आपका टाइटल। yes, 99% यहाँ पे आपको यूनिट्स दे देंगे, स्केल दे देंगे, but in rare cases they will also give that to you in the axis, right। axis के बाजू में भी instructions लिखे होते हैं what it represents। जैसे यहाँ पे ये कैटेगरी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे व्यूअर्स पर सेकेंड, राइट, व्यूअर्स पर सेकेंड, दिस कुड बी, यहाँ पे कोई स्केल नहीं दे रहा हूँ मैं, इट इज पर सेकेंड फॉर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स 1, बट मैं बोल सकता हूँ इन हंड्रेड्स। मतलब क्या, that this is not 4.5 viewers per second, but instead it is 4.5 in 100, so 4.5 into 100 is 450 viewers per second। ठीक है, this is your column chart या vertical one। horizontal में देख लेते हैं, same thing just flipped, खत्म, right। here in the x axis where here यहाँ पे categories होती है, यहाँ पे values है, और y axis में यहाँ पे categories है। देखो category 4 3 2 1, 4 categories are given to us, and each category has the same 3 series 3 2 and 1। yeah, यहाँ पे क्या किया है, values instead of giving it in the y axis they've given it in the x axis, simple as that, right। instead of the chart growing like this, it's growing horizontally, finish। yeah, so here if you want to figure out this value, चलो पहले let's look at the y x axis। ठीक है, क्या हो रहा है, each line, right, इसे grid line बोलते हैं, major grid line बोलते हैं, each major grid line represents 20 units। yes, say revenue generated in millions। ठीक है, I'm just taking a random example। तो ये revenue generated है in millions, मतलब क्या, between this line and this line। yes, this is not 20 units, instead this is what, 20 million rupees। understood? yeah, so यहाँ पे normally क्या होता है, whenever you get graph questions especially in CAT, क्योंकि पेपर पेन नहीं है, राइट, एंड फिगरिंग आउट माइनर ग्रिड लाइंस, छोटे छोटे ग्रिड लाइंस बिकम्स डिफिकल्ट, so they've reduced giving values like that। ठीक है, so what, see, you see here the example, this line here lies exactly in between 20 and 40, so you know there has to be only one possible value here, that is 30। yes, same way here, see, ये वाले जो तीनों values हैं between 40 and 60, that is 50 units। yeah, so they've stopped, kind of reduced, stopped नहीं बोल सकते क्योंकि CAT कुछ start या stop नहीं करता, but they've reduced asking the kind of questions where the bars it becomes difficult to figure out the value। क्योंकि पेपर पेन होता है, अगर पेपर पे क्वेश्चन होता है तो यू कैन कीप योर हैंड और यू कैन कीप योर रफ शीट एंड फिगर आउट कि ये कितना है, कितना अप्रोक्सीमेटली, बट सिंस इट्स ऑन द स्क्रीन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड in the during the test if you are found putting your sheet of paper on the monitor screen, it kind of raises some questions, है ना, ethical questions आ जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कैसे आंसर कर रहा है, right। so they've reduced that, but anyway this is your horizontal, so this and this are exactly the same, only difference is this is rotated, khatam। yeah, a few other elements, right, ये रहा आपका key, इसे बोलते हैं हम की बोलते हैं, legend बोलते हैं, right। this is very important that you look at the pattern or the colors used and compare immediately। yes, and when you look at the trend, चलो trend देखते हैं अभी। yes, let's quickly have a look at the trend, what is happening here with the trend now। if we are looking at series 1, ठीक है, let's look at series 1 first। series 1 is what color, blue color, right। so series 1 यहाँ पे कितना था, here it is 50 million rupees, ठीक है, and then series 1 reduced, देखो series 1 50 से 40 हो गया, reduced। yes, then it further reduced 40 to 30 आ गया,
and beyond that what happened, it increased from 30 it became 70. So this is how you look at the trend. Yes, it has been gradually decreasing for the three categories. Category 2, 3 and 4 में decrease है, but category 1 में जो है increase है. और अगर आप उल्टा देख रहे हैं इसे, category 1 to 4 अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, there is a decrease and then there are increases. Yes, so you have to analyze the trend while you're reading the instructions, while you're giving some time to the chart. Clear है? चलो done. This is all that there is to bar graphs. अब बार ग्राफ में क्या करते हैं, दे ब्रिंग इन सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि दे ब्रिंग इन सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, है ना. फॉर एग्जांपल इन दिस बार ग्राफ आई कैन ब्रिंग इन एन एलिमेंट वेयर आई एम ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन. यस, एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूं मैं. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर फॉर सीरीज 2. यस, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. या सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कर्व. मैं एक कर्व बनाऊंगा. ऑब्वियसली ये कर्व सिंगल डायरेक्शनल नहीं होगा, बट या. So I'm drawing this is called a trend line. ठीक है, ट्रेंड लाइन क्यों बनाया जाता है, टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट हाउ सीरीज 2, ऑरेंज बार जो है सीरीज 2, वो कैसे कभी इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर वापस इंक्रीज हुआ है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेंड लाइन. ठीक है, ट्रेंड लाइन. Apart from that, the some other common things that we've noticed in bar graphs, जो recent times में पूछे गए थे कैट में, is they bring in some lines within the bar. अब जैसे ये बार है तो मैं यहां पे एक लाइन बना दिया. यस, दिस वाज अ बार, आई ड्रॉ अ लाइन हियर. सो व्हाट आर दीज लाइंस सपोज्ड टू मीन? यस, दीज कुड मीन एनीथिंग. ये लाइंस जो दिए होते हैं या डिफरेंट कलर्स जो दिए होते हैं, दिस कुड मीन एनीथिंग. फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि दीज लाइंस आर द एवरेज और दीज लाइंस आर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स प्रेडिक्शन. तो लेट्स से दिस इज फॉर द ईयर 2022 और जो ग्रीन लाइंस में दिया हुआ है दैट इज प्रेडिक्शन फॉर 2023. ठीक है, ये आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर 2022 में कैटेगरी 4 में सीरीज 3 का वैल्यू जो है वो 50. यस, बट दिस इज फॉर 2022. बट 2023 के प्रेडिक्शंस के हिसाब से कैटेगरी 4 में सीरीज 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल रिड्यूस टू 40. यस, सो दीज लाइन कुड मीन प्रेडिक्शंस, दीज लाइन कुड मीन एवरेज. हाल ही में जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें क्या है, दे हैव यूज्ड दीज लाइंस टू शो एवरेज. यस, ओवरऑल कैटेगरी का एवरेज. यस, वी हैव आल्सो सीन अ बार ग्राफ क्वेश्चन जहां पे इट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड. यस, तो परसेंटेज दे देते हैं, राइट. दे विल गिव यू सम वैल्यूज इनसाइड दिस, कि ये 100% है, ये 80% है, ये 90% है, एंड सो ऑन. Yes, so all of these you can only pick up if you read the instructions carefully. You don't have to worry just yet, क्योंकि हम अभी चालू कर रहे हैं बार ग्राफ. When we move on slowly towards more complex questions, तब ये सब की टेंशन करेंगे. Right now we don't have to worry about all this. Yes, चलो, now that we've understood what a bar graph is and how to read, let's get started with the first set, shall we? I'm going to bring up the calculator. Yes, CAT LRDI allows you an on-screen calculator. That basically means whenever you have to end up doing some complex calculation, हल्का सा भी अगर वो calculation आपको discomfort या doubts दे के, sir क्या, what if I make a mistake with the calculation, what if this calculation is not right, instead of thinking too much about it, calculator है, फटाफट से numbers मारो, answer आ जाएगा. But alternatively you always have the options to do the calculation mentally or manually अगर बहुत easy है, and you also have the option of approximation. ठीक है, चलो. Here's our first set. ठीक है, this is a horizontal bar graph. Yeah, we've been given the number of candidates registered. So देख लो कहाँ है, number of candidates registered, appeared, ये रहे appeared, and scored above the cutoff marks in the year 2020 for 4 different tests. 4 tests क्या है, CAT, ZAT, IPMAT and CMAT is given in the chart below. Yes, all of this data is given in the chart here. तो अब फटाफट से एक बार चार्ट को देखते हैं. चार्ट में क्या है, we've seen that these in the title. ठीक है, पहले टाइटल पढ़ते हैं. let's go with the standard, let's follow a standard practice here of starting with the title. ठीक है, तो टाइटल पढ़ेंगे. number of candidates मतलब यूनिट क्या है, नंबर है, just entities. okay, number of candidates registered, appeared and scored above the cutoff in 2020 in what, in 100,000s. yes, in 100,000s. what does this term 100,000 mean guys? 1000 ठीक है, 10,000 ठीक है, 100,000 क्या होता है, 100,000 in Arabic format or the format that we use, right, as Indians, वो क्या है, 100,000 क्या हो जाता है, 1 lakh. yes, how, ones, tens, hundreds. yes, फिर आता है 1000, 10,000 and this is 100,000. correct.
दिस वैल्यू इज 100,000. आर यू गेटिंग दिस? आ रहा है समझ में? तो ये क्या है देखो, इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू इंडियन फॉर्मेट या जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं, वी आर यूज्ड टू, इज गोइंग टू बी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 1 lakh. Yes. So what does 100,000 mean? 100,000 means lakhs. क्लियर है? या तो अगर आपको 100,000 में कंफ्यूजन होता है, देन वी यूज लैक्स टू गेट इट आउट ऑफ आवर माइंड. ठीक है, अब वैल्यूज देख लेते हैं. वी हैव 4 टेस्ट, राइट? ग्रीन वन इज अबाउ कट ऑफ, सो विल स्टार्ट विद द रजिस्टर्ड. कितने लोगों ने रजिस्टर किया, उसमें से कितने लोग अपीयर किए, और उसमें से कितने लोग कट ऑफ से ऊपर स्कोर किए. ठीक है, सो लेट्स लुक एट कैट. व्हाट डू वी सी? दैट द वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ईच मेजर ग्रिड लाइन इज 5 यूनिट्स. But remember, ये 5 units नहीं होगा, 5 lakh units होगा, 5 lakh candidates. Okay, so each major grid line is 5 lakh candidates, and to make our job so much easy, they've also given us minor grid lines. दिख रहा है आपको? Are you able to see minor grid lines? We've been given with minor grid lines to make our job easy, ताकि हम we don't have to sit and assume कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं. Yes, so yeah, so that part is given to us. We have the values. If we were to look at the values for CAT, we have 25 lakh people. I know that's not the right value. 10 times बढ़ाया गया, right? About 2.5 lakh people, not 25 lakh people. But anyway, yeah. So about 25 lakh people here, 20 lakh people here, and 15 lakh people scored more than the cutoff. Yes. For which college? ये मैं नहीं बोलूँगा. आप सोचोगे कि सर ये तो IIM के नहीं, कोई भी कॉलेज का हो सकता है कट ऑफ. ठीक है. देन फॉर दैट वी बीन गिवन द वैल्यूज. यस, सब कुछ दे रखा है. वी हैव नोटिस्ड एवरीवेयर क्या ये कॉमन सेंस है, बट कई बार क्या हो जाता है LRDI में, यू हैव टू समटाइम्स कीप योर आउटसाइड नॉलेज आउटसाइड. एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि व्हाट यू नो इन रियलिटी मे नॉट बी अप्लाइड इन द गिवन कंडीशन. जो सेट दे रखा है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें वो अप्लाई ना हो. राइट? सो यू हैव टू, यू नो, लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, आपको ये सब शॉकिंग से देख के फिर रियलाइज करना पड़ता है. ओके, तो क्या देख रहे हैं कि number of registered students is greater than the number of students who've appeared in the test, and that value is greater than the number of students who've passed the or have scored above the cutoff. समझ में आ गया? That is the case everywhere, है ना? reduce हो रहा है, देखो step दिख रहा है, reduce and so on. Yes, now to make this part a little bit easy for you guys, क्योंकि अपना पहला set है, right? What I am going to do as a very kind person is I am going to draw for you guys minor grid lines also. ठीक है, मैं माइनर ग्रिड लाइंस भी बना रहा हूं. माइनर ग्रिड लाइंस क्या है? बिटवीन द मेजर ग्रिड लाइंस जो डिवाइड करते हैं. सो जैसे ये 0 to 5 इज 5 यूनिट्स, तो मैं क्या है 1 2 3 4 आई हैव ड्रॉन वट एवर कम्स इन बिटवीन. यस, सो दिस इज 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, देन 6 7 8 9 एंड सो ऑन. कभी कभी ये लाइंस दिए जाते हैं, कभी कभी ये नहीं दिए जाते हैं. राइट? कभी कभी हमें डायरेक्ट वैल्यूज भी दे देते हैं इफ दे आर फीलिंग काइंड इनफ. या तो चार्ट भी देते हैं, बट उसके साथ साथ वो वैल्यूज भी दे देते हैं. या सो यू डोंट रियली हैव टू रीड द चार्ट दैट वे. बट चलो अब लेट्स फिगर आउट द वैल्यूज हियर, शैल वी? फटाफट से वैल्यूज निकालते हैं. विल स्टार्ट विद कैट. सो व्हाट डू वी सी? दिस इज 25 lakh, दिस इज 20 lakhs, this is 15 lakhs, and for that we have 20 moving down to 15, which moves down to 10. Then for IPMAT we have 15 that moves down to 8, which further moves down to 6. And CMAT we have starts with 10, moves down to 8, and further moves down to 7. ठीक है? Yes, this is what we want, है ना? ये डेटा ही हमें चाहिए. The bar graph or whatever अगर ना भी हो तो चलेगा. If you have this data, you can answer the questions. Yes, so ये जो है I'll put it on the chart. अब जैसे मैंने ये बना दिया है, ठीक है, आई हैव रिटन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज ऑन द चार्ट, ताकि आई डोंट हैव टू सिट एंड लुक एट द एक्सेस अगेन एंड सिट एंड काउंट. क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाती है हमसे. राइट? आफ्टर 15, instead of counting at 16, I'll by mistake start counting at 11. I might by mistake start counting at 21. Right? ये कई बार हो जाता है. Yeah, so to avoid any of such mishaps from happening, हम क्या करेंगे? We'll have the values written so that it becomes easy for us to go ahead with the questions. ठीक है? बट ये सब करना है नहीं करना है, क्या वैल्यूज मैटर करते हैं, क्या क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है या क्वेश्चंस जो है आर दे एनालाइज एंड आंसर टाइप, ये सब कैसे पता चलेगा? बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन. सो अगेन मेक दिस अ हैबिट. आफ्टर यू आर डन विद द इंस्ट्रक्शंस एंड द चार्ट, यू मूव ऑन टू व्हाट? द क्वेश्चंस, द ऑप्शंस, द होल शबैंग. ठीक है? मेक दिस अ हैबिट गाइस. अगर आप पहले नहीं करते थे, अब से करना चालू कर दो. पीपल हु ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर LRDI या पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ,
आज ही से शुरू कर दो. मेक दिस अ हैबिट of looking at the questions and the answer choices right after you are done looking at the chart, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, right? So here we have one question that is theta, the other five question, ये 6 question का set है, right? We have one question that is theta and we have 5 questions that are MCQ. Theta questions are going to be your jackpot questions, मतलब लगा तो ठीक 3 marks आएंगे, अगर नहीं लगा तो कोई गम नहीं, right? You will not lose anything, no negative scores there. So these are the kind of questions that you should never leave unanswered. ठीक है? So we have 6 questions. Let's quickly have a look at this. Total number of candidates, simple addition हो जाएगा. Percentage of students who appeared for CAT, registered for CMAT, values है, निकल जाएगा. The third question seems a little lengthy, right? 3 लाइन जा रहा है, फटाफट से पढ़ते हैं. The average marks of IP MAT appearing student was 90 and the average marks of candidates clearing the cutoff was 110. ठीक है, 2 averages दे रखे हैं and they're asking for the third average. यस अगर आप लोगों ने एवरेजेस कर लिया है क्वांट में, वेरी गुड. अगर नहीं किया तो लेट मी टेल यू, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज. ठीक है, वेटेड एवरेज बोलते हैं इसे. यस वी डिस्कस्ड वेटेड एवरेज. व्हाट इज वेटेड एवरेज? वैसे तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था इन इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल्स, दैट इज लेक्चर 1. तो अगर आप ये देख रहे हो अभी, इफ दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर दैट यू आर वाचिंग, देन आई वुड रिकमेंड दैट यू गो टू लेक्चर 1 to learn more about weighted average. मैंने डिटेल में विद एग्जांपल समझाया है what weighted average is, including percentages, averages, mean, median, mode, ratio, सब कुछ समझाया है. ठीक है, so don't forget to check that out. Anyway, moving on. So third question seems a little solvy. थोड़ा सा बैठ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं. नंबर ऑफ ZAT रजिस्ट्रेशन इंक्रीज्ड बाय 20%. ठीक है, प्रेडिक्शन है 2020 का डेटा दे रखा था, यहाँ पे बोल रहे 2021 का हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस फॉर ऑल द टेस्ट? सम ढूंढेंगे, एवरेज निकल जाएगा. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच टेस्ट हैज द सेकंड लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशंस इट रिसीव? तो क्या करना है, वी हैव टू फिगर आउट कि डिक्लाइन रिड्यूस किस में, सेकंड लार्जेस्ट हुआ है. लार्जेस्ट रिडक्शन नहीं, सेकंड लार्जेस्ट. ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपैरिजन. ये जो है परसेंटेज कंपैरिजन पे है. यस, दिस इज योर स्टैंडर्ड रेगुलर एवरेज. Fourth wala is prediction for the next year. Third question is weighted average. Second question is simple comparison, percentage comparison, and the first one is simple addition. All right, 6 questions. All 6 questions are calculative. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप देख के आंसर करेंगे. एनालाइज एंड आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं है इसमें. दैट बेसिकली मींस यू आर गोइंग टू नीड योर पेन एंड पेपर, यू आर गोइंग टू नीड योर कैलकुलेटर सो दैट यू कुड गो अहेड एंड डू द कैलकुलेशन बिट. डन है? चलो, ब्यूटीफुल गाइस. इफ यू वांट टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, एंड देन यू वांट टू वॉच द सोल्यूशन विद मी, गो अहेड एंड डू दैट. अभी पॉज मार लो, सॉल्व कर लो सारे 6 क्वेश्चंस. आई हैव ऑलरेडी शोन यू द ग्राफ. यस, सॉल्व करो और आ जाओ. बाकी लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं. आई एम गोइंग टू प्लेस माय कैलकुलेटर हियर. यस, लेट्स पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर ऑल द 4 टेस्ट? ठीक है, 4 टेस्ट के रजिस्टर्ड. यस, रजिस्टर्ड मतलब कौन से? ब्लू वाले ग्राफ, ब्लू वाला जो बार्स है, राइट, 4 बार्स है, उन्हें ऐड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल. दिस क्वेश्चन इज अ थीटा क्वेश्चन और ये ऐसे दिखता है, राइट. यू विल हैव अ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा. हियर इज वेयर योर फाइनल आंसर विल गो एंड यू विल हैव अ कीपैड, राइट. ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा. कैट में आप कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते, राइट. यू विल बी अलाउड टू यूज ओनली योर माउस. तो माउस को रख के ये वर्चुअल कीपैड होगा, राइट. दिस विल अपीयर ओनली व्हेन देयर आर थीटा क्वेश्चंस. वर्चुअल कीपैड होगा, आपको माउस का कर्सर घुमाना है. वट एवर योर आंसर इज, लेट्स से मेरा आंसर 963 है, तो मैं 9 फिर 6 फिर 3 पे क्लिक करूंगा और मैं चेक करता रहूंगा कि क्या वो टेक्स्ट बॉक्स में अपीयर हो रहा है. यस, अदर फीचर्स, यू कैन मूव द टेक्स्ट कर्सर जो है उसे आप लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं. पूरा जो भी वैल्यूज है उसे आप क्लियर कर सकते हैं. इफ यू वांट टू यू नो टाइप आंसरिंग द आंसर, द टाइपिंग द आंसर, क्या बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू टाइप द आंसर ऑल ओवर अगेन तो आप पूरा क्लियर ऑल करके कर सकते हैं एंड यू विल हैव अ बैक स्पेस ऑप्शन. ठीक है, बैक स्पेस मतलब रिसेंट आपने जो टाइप किया उसे रिमूव करना है. तो कीबोर्ड कहीं पर भी नहीं है. प्लीज गेट यूज टू द माउस. ना तो आप थीटा क्वेश्चंस के कीपैड को आप अपने कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हो एंड यू कैन नॉट ऑल्सो यूज योर कैलकुलेटर यूजिंग द कीबोर्ड, राइट. सो इन द टेस्ट, कैट के टेस्ट में माउस इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनपुट. यस, आपके और आपके इंटरफेस के बीच में जो आपके मैसेजेस पहुंचाएगा, दैट्स गोइंग टू बी ओनली योर माउस. गेट यूज टू अ माउस. यस, पीसी पकड़ाओ. यस, पिक अप अ माउस. प्रिफरेबली
ऑप्टिकल माउस, राइट, बॉल वाला नहीं, पुराने जमाने वाला नहीं, ऑप्टिकल माउस वही आता है, आजकल बॉल वाले आते नहीं है। एंड ऑल्सो वायर्ड, नॉट वायरलेस, क्योंकि वायरलेस को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, वायर्ड यूज करो, गेट यूज टू इट, ठीक है। आप जितना जितना ऐसे डिफिकल्टीज, ऐसे हर्डल से आप व्हेन यू गेट यूज टू इट, एक्चुअल टेस्ट में वो आपको बिग डील नहीं लगेगा। या चलो, इनफ अबाउट टीटा क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस वन, ठीक है, चालू करें। Okay, let's get this started. So what do we have to do? We basically just have to add all the registrations. That's it, right? तो क्या क्या ऐड करना है? We have to add this 10 plus we have to add this 15. वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बट ठीक है तो यूज करेंगे। प्लस 20 प्लस 25, तो वी हैव 70। आंसर है अपना 70, राइट? सम इज गोइंग टू बी 70। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 पे कर्सर को लाएंगे, 7 आ जाएगा, फिर 0 पे कर्सर लाके प्रेस करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। 70 इज व्हाट यू वुड टाइप। अगर 70 टाइप करेंगे, टेस्ट सबमिट हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये इजी 3 मार्क्स मेरे को मिल गए, एंड ऑफ द डे आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गलत आंसर है ये। यस, व्हाई? बिकॉज दीज वैल्यूज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, स्केल डाउन है 100,000s में। Please remember that, right? So your answer is not 70, it's going to be 70 lakhs. Yes, तो 70 into 1 lakh, 100,000 क्या है? 1 lakh है ना? So 70 into 1 lakh, which is 70 lakhs. समझ में आ गया? Yes, so 70 followed by 7 followed by 6 zeros is 70 lakhs. Done है? 1 tens 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh. So your answer is going to be 70 followed by 1 2 3 4 5 zeros. 1 2 3 4 5. ठीक है? It is very important that you not mess up with the zeros. Zeros को लेके कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, जब आपको टाइप करना होता है, इसमें एंटर करना होता है, आप 0 पे 6 टाइम्स के बदले 5 टाइम्स प्रेस करते हैं और सोचते हैं कि हो गया, या कभी 6 के बदले 7 आ गया, या कभी 0 आया नहीं 1 आ गया गलती से। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू टीटा क्वेश्चंस, राइट? टीटा का एडवांटेज क्या है? नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, बट डिसएडवांटेज क्या है? दैट यू विल नॉट नो इफ द आंसर यू रिसीव्ड इज राइट और नॉट, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। चलो, ये इजी पीजी क्वेश्चन, ओनली प्रोबेबल वे टू मेस अप दिस क्वेश्चन इज विद द जीरोस, ठीक है? चलो, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 परसेंटेज कंपैरिजन पे है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर कैट, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड, appeared for CAT, registered for CMAT. CMAT के registrations कितने हैं? Registered is blue. CMAT के registrations, okay? CMAT registrations. ये percentage ढूंढना है. We have to find out that this is what percentage of this. So fraction निकालेंगे, फिर into 100 क्योंकि percentage में खत्म, right? So CMAT registrations कितने हैं? 10. CAT के appearing कितने हैं? Here 20. So 10 by 20 into 100, that's basically 50%. Yes, so 50% is our answer. 50% of the candidates who appeared for CAT registered for CMAT. Although जब ये आप सुनते हैं, it doesn't make sense, है ना? Does it make sense, guys? 50% of the students who appeared for CAT registered for CMAT. Does it have to be true? No, but यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब when I do this comparison, when I say 50%, I'm not saying 50% of the people, same crowd नहीं है, 50% of the number of students. I hope you're getting this, ठीक है? 50% of the number of students who appeared for CAT have registered for CMAT. Number of students का 50% है, same group नहीं है, right? Sample space जो group है वो same नहीं है, ठीक है? वो फिर वो क्या हो जाता है, वो Venn diagram बनने लग जाता है, right? Venn diagram, intersection, all of that, उसमें नहीं घुसना है। Yes, clear है guys? Yeah, no issues. Answer choices भी काफी simple है, very direct. Just make sure you don't mess up with this, right? 8 by 20, if you do 8 by 20 तो 40% आ जाएगा, वो ये ट्रैप है। 25% is if you end up doing 10 by 25 भी 40% ही है। 8 by 20, 10 by 15, ये सब जो है ट्रैप आंसर्स ले कर रखे हैं यहाँ पे। सो प्लीज बी श्योर ऑफ द राइट काइंड ऑफ वैल्यूज दैट यू पिक, ठीक है? डन, इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन। इफ यू नोटिस गाइस, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं आपको एक टिप देता हूँ, ठीक है? हाउ टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस। यस, तो मैंने क्या किया, आई रोट डाउन व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट। क्वेश्चन से मेरे को क्या पूछा गया है, सॉरी, क्वेश्चन से मेरे को क्या पूछा गया वो मैंने पहले लिख लिया, फिर मैं चार्ट से वैल्यू उठा के लेके आया, फिर मैं कैलकुलेशन किया। आर यू गेटिंग द प्रोसेस? मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड, तो मैं डायरेक्टली 20 उठा रहा हूं, राइट? फिर कंपेयर कर रहा हूं 10। यहाँ पे इस ऐसे ही गलतियां होती है। When you directly go for the jump for the value is when you end up making mistakes, right?
इफ यू आर श्योर कि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन। आंख बंद कर लो, क्वेश्चन के ऊपर हाथ लगा लो कि ये नहीं यार, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा था वो मैंने लिख लिया। नेक्स्ट डेटा निकालना था, डेटा मैंने चार्ट से निकाला, we picked up the data from the chart. Once we are done with this part, remove of the chart. आपको चार्ट की तरफ वापस देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो तो ठीक, कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो ठीक। प्लीज रिमेंबर गाइस, डू नॉट मल्टीटास्क इन अ टेस्ट। समझ में आ रहा है? मे बी यू वुड बी थिंकिंग कि सर मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ, मैं एक टाइम पे 2 काम 3 काम एक साथ में कर रहा हूँ। प्लीज डोंट डू दैट। मल्टीटास्किंग extremely risky when it comes to a test like CAT, ठीक है? So instead focus on one task at hand. एक टास्क उठाओ, खत्म करो, get rid of it. Next task उठाओ, खत्म करो, get rid of this. Next task उठाओ, खत्म करो, get rid of this. When you have the final answer, have a look only at this. Yes, सिर्फ इसे देखो। आपने कहीं पे 20 देखा वैल्यू, आप 20% ढूंढने लग जाओगे। कहीं पे 10 देखा वैल्यू, 10% ट्रैप देखा। Focus on smaller bits. Do not get lost. Do not lose out on easy questions like this with the help of the trap. ठीक है? तो ट्रैप से दूर रहें, and the best way to do that is to focus at one task at hand. ठीक है? चलो, question number 3. This is the longer bit, है ना? This is from weighted average. तो अगर आपको weighted average क्या है नहीं पता, I would again recommend lecture 1 देखो, इस प्लेलिस्ट का, इसी प्लेलिस्ट का lecture 1 देखो, उसमें I have in detail। खैर अभी क्योंकि एक ही बच्चे मैं वापस एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। ये क्या पूछ रहे? इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ आईपी मैट अपियरिंग स्टूडेंट्स, आईपी मैट ये रहा, अपियरिंग स्टूडेंट्स ये रहा, राइट? तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो 8 स्टूडेंट्स हैं, चलो पहले क्वेश्चन का लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम डेटा उठाते हैं। यस, सो वी हैव आईपी मैट अपियरिंग स्टूडेंट्स, इनका जो एवरेज है, देयर एवरेज इज गिवन एज व्हाट? 90, ठीक है? And the average marks of candidates clearing the cutoff. तो average of IP MAT कट ऑफ क्लियरिंग वाले, ठीक है, कट ऑफ क्लियरिंग वाले का एवरेज कितना है? इज 110. ओके, सो 2 averages are given to us from the same category, CMAT, but one is number of students who appeared and the next is number of students who ये रहा IP MAT, number of students who cross the cutoff, ठीक है? अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? Then what was the average marks of the candidates who appeared for the test yet could not clear the cutoff? या ठीक है, डेटा निकालते हैं। IP MAT appearing students कितने हैं? IP MAT appearing students are these 8. तो 8 स्टूडेंट्स का एवरेज 90 दे रखा है। नेक्स्ट IP MAT कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? these 6. तो 6 स्टूडेंट्स का एवरेज 110 दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? दे appeared for the test, appeared for the test are 8, उसमें से 6 people cleared the cutoff. तो ऐसे कौन कितने लोग हैं जो टेस्ट के लिए अपीयर किए बट कट ऑफ क्लियर नहीं किए? People who've appeared for the test yet not cleared are going to be 8 minus 6, these 2 students. Make sense? आ गया समझ में guys? Yes, I hope you're getting this. 8 students appeared for the test, 6 cleared the cutoff. These 2 are the students who appeared for the test but did not clear the cutoff. ठीक है? तो हमें क्या ढूंढना है कि ये बाकी के दो लोग हैं, 8 minus 6, remaining 2 people, उनका क्या एवरेज था? या सो स्टार्ट विद दैट। हम क्या करेंगे? पहले जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है? ये लो, इसे किया इरेज। यस, लेट्स डू दिस। सो मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस, कई सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं जहां पे यू गो विद द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, यू नो दैट, आपको पता है कि एवरेज क्या होता है? व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर मेरे को सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई द एवरेज विद द नंबर ऑफ टर्म्स। एग्रीड? एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरेज कितना है? 90। दिस इज योर एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8। एक्चुअली 8 लाख है, 8 लाख है, बट क्योंकि ये भी लैक्स में, ये भी लैक्स में, ये भी लैक्स में ही होगा तो वो बैलेंस आउट हो रहा है। बट एनीवे 8L लिख ही लेते हैं, ठीक है? लेट्स नॉट रिस्क इट। 8 lakhs 6 lakhs कर ही देते हैं। या सो 8 lakhs into 90, सम हमें ढूंढना है, वी आर फाइंडिंग आउट द सम। 8 lakhs into 90, 8 into 9 is 72, 8 into 90 is going to be 720, तो ये कितना हो गया? 720 lakhs। 720 lakhs is the sum of all 8 lakh students के marks, ठीक है?
आई नो हर किसी का मार्क 90 होना जरूरी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द सम, राइट, वी आर नॉट गोइंग इंडिविजुअल मार्क्स, सम जार। सेम वे वी आर गोइंग टू डू फॉर द सेकंड ग्रुप नाउ। 6 लाख स्टूडेंट्स है, 110 is their average, that means the sum is going to be what, 6 into 110, 660 lakhs, yes. Got it। अब इन दोनों का डिफरेंस, यस, आउट ऑफ दिस 8 लाख एंड 8 लाख में से मैं इन 6 लाख लोगों का मार्क्स निकाल दूं तो क्या बचेगा, 2 लाख पीपल का मार्क्स, करेक्ट। रिमेनिंग 2 लाख पीपल का मार्क्स कितना होगा, 720 माइनस 660, 0 माइनस 0 0, 72 माइनस 66 is 6, yes, 60 lakhs, make sense। 720 lakhs minus 660 lakhs is 60 lakhs, yeah, 660 plus 60, 720 ना। तो अगर 2 लाख स्टूडेंट का, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, सम है, करेक्ट। 2 लाख स्टूडेंट का द सम ऑफ 2 लाख स्टूडेंट्स मार्क्स is 60 lakhs, then what will be the marks for each student, or what is the average? तो average कैसे निकालते हैं, what is average? Look at this, sum divided by the number of terms, है ना, sum divided by the number of terms। तो ये लगाएंगे। how to find out the unknown, average कैसे ढूंढेंगे, sum is 60 lakhs divided by number of students is 2 lakhs, lakh cancel, this is 30, so we get that the average of the remaining students who appeared for the test but not cleared is 30। this is our answer। आ रहा है समझ में गाइस? this is weighted average। रेयर केसेस में ऐसे कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन डीआई, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जो क्वांट बेसिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लें बिफोर मूविंग ऑन टू गोइंग विद एडवांस्ड क्वेश्चंस इन डीआई। यस, आगे समझ में? देयर आर ऑब्वियसली शॉर्टकट्स, ऑब्वियसली शॉर्टकट्स है इन्हें सॉल्व करने का, राइट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट पहले ना ट्रैप देखते हैं। ये देखो 90, 110 माइनस 90 इज 20, ये आपका ट्रैप है। यस, प्लीज रिमेंबर, एवरेज पूछा है डिफरेंसेस का, यस, नॉट एवरेज का डिफरेंस। आ गया समझ में? आई होप यू आर गेटिंग दिस, एवरेज ऑफ द डिफरेंस, नॉट डिफरेंस ऑफ द एवरेजेस। यस, सो प्लीज बी केयरफुल। ये 110 माइनस 90 करके 20 करके बोलोगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन, नो, दैट्स इनकरेक्ट। यस, the answer is 30, please be careful about that, okay। alternate way of doing this, ये करने के लिए you need to know allegations, so this is for people who know allegations, बाकी लोग don't worry about it, once we teach allegations ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। so what is happening, we have two categories of people, one who cleared the cutoff, who not cleared the cutoff, correct। इन दोनों का टोटल, जो कट ऑफ क्लियर किए, जो कट ऑफ नहीं क्लियर किए, उन दोनों का टोटल क्या है, पीपल हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। यस, सो क्लियर्ड कट ऑफ कितने लोग हैं, 6 पीपल। नॉट क्लियर्ड कट ऑफ कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल, 8 में से 6 मतलब 2 पीपल डिड नॉट क्लियर द कट ऑफ, राइट। क्लियर्ड कट ऑफ, क्लियर्ड वाले का टोटल कितना है, एवरेज कितना दे रखा है, 90। यस, नॉट, नहीं सॉरी, ये 90 है, वो 110 है, सॉरी, this is 90, this is 110। again guys I repeat, जिन लोगों को एलिगेशंस आता है सिर्फ वही देखें, अदर्स प्लीज डोंट, ओके। क्लियर्ड वालों का 110 दे रखा है, इसका नहीं दिया, इसका x है। यस, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दिस x इज, वी यूज द मेथड कॉल्ड एलिगेशन, जहां पे वी फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। 110 माइनस 90 कितना है, व्हाट इज 110 माइनस 90, 20। यस, तो ये रेशियो क्या है, 2 है, दिस बिकम्स 20। Since this is 20, 6:2 को मैं अगर ये 20 बोल रहा हूं तो ये 60 हो जाएगा। Yes, so what is this going to be, 90 minus 60, which is going to be 30। ये आपका एवरेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट क्लियर द कट ऑफ। माइंड यू गाइज, ये वाला मेथड इज ओनली फॉर पीपल हु आर कंफर्टेबल विद एलिगेशंस। अगर एलिगेशंस अब तक नहीं आता है, डोंट वरी, एलिगेशन समझाया जाएगा आपको, that time you can do this method। otherwise ये वाला है ही है, this is not very lengthy, सिंपल सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, खत्म। यस, चलो, सो we've done this question in 2 ways। yes, this is called weighted average। if you want to learn more about weighted average, go check out lecture 1, इसी playlist में available है, lecture 1 introduction and essentials for data interpretation। ठीक है, चलो, ये हो गया कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन खत्म, चलो पीछा छूटा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हैं, देन इट्स इवन ओके टू स्किप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, if the number of ZAT registrations increased by 20% in 2021, ये जो वैल्यू हमें दे रखा है इस फॉर विच ईयर, 2020, ये सारे वैल्यूज। अब ये बोल रहे कि 2021 में, या सो 2020 में किसका नंबर ऑफ ZAT registrations is 20, करेक्ट, 20 लाख। चलो,
इन 2021 ये बोल रहे हैं 2021, ठीक है, दिस इज फॉर दैट, दिस इज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, ओके। ये बोल रहे हैं कि इट इंक्रीज्ड बाई 20%, 20 lakhs इंक्रीज्ड बाई 20%, 20 का 20% कितना है 4, सो दिस विल बिकम 20 lakhs प्लस 4 lakhs विच इज 24 lakhs, ठीक है। ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, देन व्हाट परसेंटेज कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट दैट ईयर। ये देखो, दैट अपीयर्ड इज 15 इन 2020, ठीक है, अपीयर्ड इज 15 lakhs इन 2020। 2021 का ये कितना इंक्रीज होगा, ये नहीं पूछ रहे, ये वाला वैल्यू नहीं पूछ रहे, दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज द न्यू वैल्यू। ये क्या पूछ रहे हैं कि यहां से यहां कितना इंक्रीज होगा, व्हाट इज दिस। जैसे यहां से यहां 20% इंक्रीज हुआ, यस, वैसे ही यहां से यहां नो, नॉट इवन इंक्रीज, नॉट इवन इंक्रीज, दे आर आस्किंग के ऑफ द रजिस्ट्रेशंस। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दे आर नॉट इवन आस्किंग दैट, व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग कि आउट ऑफ द पीपल हु रजिस्टर्ड व्हाट परसेंटेज पीपल हैड अपीयर्ड, राइट। ये तो अगर ये वैल्यू x है, दे आर बेसिकली आस्किंग अस टू फाइंड आउट व्हाट इज x अपॉन दिस 24 lakhs इनटू 100, यस। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज पीपल थिंक यहां पे अगर 20% इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर 20% इंक्रीज हुआ है, तो नंबर ऑफ अपियरेंसेस भी 20% इंक्रीज होगा। बट इज दैट ट्रू, इज इट ट्रू, नॉट नेसेसरीली, राइट। वो डेटा हमें दे रखा नहीं है, वी डोंट नो एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, यस, वी कैन नॉट मेक दिस असम्पशन, सो वी डोंट नो दिस, यस। दैट बेसिकली मीन्स अगर ये नहीं पता तो हमें ये भी नहीं पता कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ अपीयरेंसेस फॉर दैट इन 2021 कितने होंगे। अगर ये नहीं पता तो ये नहीं पता, ऑटोमेटिकली दिस होल थिंग वी डोंट नो, यस। व्हाई, बिकॉज देयर इज इनसफिशिएंट डेटा, डेटा इज गिवन for the increase in registrations, but nothing was told to us about appearances, yes. So our answer is cannot be determined, yeah, please do not make the mistake of doing the calculation like this। आ गया समझ में guys, I hope you're getting this, okay, yeah। जो ये 20% है, this 20% that's basically वो भी नहीं है आंसर, टेक्निकली दैट्स आल्सो नॉट द आंसर, राइट। 20% पीपल डिड नॉट अपीयर टेक्निकली, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, देयर आर ट्रैप आंसर्स लेड, you have to be careful not to fall into those, yes। cannot be determined, none of the above, whenever you find these answer choices in a question, कोई भी LRDI के क्वेश्चन में अगर cannot be determined और none of the above दे रखा है, या either 1 or 2 और both 1 and 2, ऐसे वाले आंसर चॉइसेस जब भी दे रखे होते हैं, प्लीज मेक अ नोट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अपने जो स्पाइडी सेंसेस हैं, yes, please activate those, be very careful, yes, take every step carefully at those cases, ठीक है। चलो, so the answer to this question is cannot be determined, why, because insufficient data is given to us, we have no clue about the people who appeared for that in 2021, done, beautiful, very good। Moving on to the fifth question, what is the average number of registrations for all the tests? सिंपल सा क्वेश्चन है, yes, for this we are not going to do extra work, हम वापस वही बैठ के ऐड करने की जरूरत नहीं है, because we already know from the previous question। ये देखो, from the first question हमें पता है, we added this up, we know that the answer is 70 lakh। 70 lakh क्या है, total number of registrations, correct, total number of registrations। अब क्या पूछा है हमें, what is the average number of registrations, average पूछा है, we know that average is what, sum by the number of terms। यहां पे sum of all the registrations is 70 lakhs, yes, and what is the number of tests, 4 टेस्ट है by 4, yes, so all you have to do is 70 lakhs divided by 4, मैनुअली करना है मैनुअली करो, कैलकुलेटर करना है कैलकुलेटर करो, या थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आंसर चॉइसेस आपके सामने हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस फिगर आउट विच वन डजंट मेक सेंस। 70 lakhs by 4 under in any parallel universe 700 lakhs तो नहीं होगा, तो that is out। 70 lakhs by 4 is not 70 lakhs, that is also out। now you have two options, 17.5 and 1.75। 1.75 lakhs को 2 lakhs भी अगर हम बोल दें तो 2 lakhs into 4 is 8 lakhs, यहाँ पे हम 70 lakhs की बात कर रहे हैं, this is too less, only answer is this, ठीक है। then 70 divided by 4 is 35 by 2, 35 by 2 is 17.5, so it has to be 17.5 lakhs, done। yes, they have done us a very solid job of using the scale,
यहाँ पे लैक्स लगाया है ना कि जीरोस लगाया है। अगर जीरोस होता है तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल दैट। ठीक है, डन, इजी पीजी क्वेश्चन, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, राइट। ये वाला हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा था इन द फर्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड बाय 4 करना है, कैलकुलेटर भी नहीं यूज किया, कैलकुलेशन भी नहीं किया, आंसर चॉइस देखे, एलिमिनेटेड द वंस दैट डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल, अल्टीमेटली वी वर लेफ्ट विद द वन दैट एक्चुअली मेड सेंस, खत्म। ठीक है, मूविंग ऑन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस particular set 1 का last question है। let's quickly have a look at this. which test has the second largest decline? अब decline की बात करते हैं, right? what do you mean by this decline? decline मतलब क्या? reduction, yes, but when we talk about decline we are not talking about in value. for example, okay, let's take cat, ठीक है, cat लेते हैं, cat हमने लिया, इसमें registrations कितने थे and अपीयरेंसेस कितने थे, ये दो ही देखना है, वी डोंट हैव टू लुक एट कट ऑफ वाले पीपल। ठीक है, सो कैट के अपीयरेंसेस कितने थे? 25 लाख एंड अपीयर्ड कितने थे? 20 लाख। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस टू अपीयर्ड। अब ये बोल रहे हैं कि डिक्लाइन जो हो रहा है यहां से यहां, रजिस्ट्रेशन से अपीयरिंग जो डिक्लाइन हो रहा है, इधर से इधर जो रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू डिप हो रहा है, वो सेकेंड लार्जेस्ट किसकी है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिडक्शन कितना हो रहा है? 5 लाख का, यस, यहाँ पे देखेंगे 5 लाख का, यहां देखेंगे जैट में भी 5 लाख है, राइट, जैट में भी क्या है? रजिस्ट्रेशंस एंड अपीयरेंसेस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 लाख है। तो क्या ये दोनों सेम है? आर दे द सेम? डू बोथ सी द सेम डिक्लाइन? नहीं। क्यों? इंडिविजुअली अगर सिर्फ आप डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हो देन दे आर द सेम, बट जैट के रजिस्ट्रेशंस कितने थे? 20 लाख, they became 15 lakhs, है ना। now when you compare it with each other, cat का जब आप z से कंपेयर करते हो, right, then you always have to compare it with the percentage, yes। तो 5 लाख डिक्रीज हुआ, yes, but compared to 25 लाख registrations, correct, 5 लाख का डिक्रीज है compared to the 25 लाख registrations। तो ये कितना हो गया? when I find out the percentage value, ये नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा भाई, साइड आ जा, इधर डाल रहे, ठीक है, कोचे में। तो दिस इज व्हाट, लाख लाख कैंसल, दिस इज 1/5, दिस इज 20% का डिक्रीज, यस। तो डिक्रीज हुआ है कितना? 20%। हाउएवर हियर सेम 5 लाख डिक्रीज है, बट कंपेयर टू 20 lakhs, आर यू गेटिंग दिस? इनटू 100, तो ये कितना हो गया? 1/4, दिस इज 25% का डिक्रीज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस। यहां पे भी 5 लाख डिक्रीज है, यहां पे भी 5 लाख डिक्रीज है, बट ये 5 लाख कंपेयर टू इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 20% डिक्रीज, बट जैट में ये 5 लाख कंपेयर टू 20 लाख इज 25% डिक्रीज। आर यू एबल टू गेट दिस गाइस? यस। तो अब तक हमने देखा कि सबसे बड़ा डिक्रीज जो है जैट में है, बिकॉज वी हैव लुक्ड एट ओनली 2। आईपी मैट और सी मैट भी फटाफट से देख लेते हैं, यस। तो अब मैं ये सब नहीं लिखूंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आईपी मैट का डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हमें क्या करना है। आईपी मैट का क्या है? रजिस्ट्रेशन 15, अपीयरेंसेस 8, 15 माइनस 8 कितना? 7 कंपेयर टू 15, करेक्ट, इनटू 100। अगर ये 7/14 होता, इफ दिस वेयर 7/14, तो ये 50% हो जाता, यस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेस देन दैट, बट कैलकुलेटर है तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट डाल दो। 7 डिवाइडेड बाई 15 इनटू 100, यू गेटिंग हाउ मच? 46.67%, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज है इट इज 46.67%, यस। एंड टुवर्ड्स द एंड सी मैट है, सी मैट के केस में क्या है? 10 registrations, 8 appearances, yes। so 10 minus 8 is 2 divided by 10, क्योंकि number of registration से हम compare कर रहे हैं, into 100, this is how much? 20%, yes। so what do you see here? आप यहां पे क्या देख रहे हो कि सबसे बड़ा जो डिक्रीज है, सबसे लार्जेस्ट डिक्रीज इज दिस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता विच टेस्ट हैज द लार्जेस्ट डिक्लाइन, तो हम बोलते हैं आईपी मैट, या however they are asking for the second largest, so 46 के बाद का बड़ा वैल्यू क्या है? after 46 the next larger value is going to be 25%, which is for the test of ZAT. done? clear है? yes। डिक्रीज ढूंढना है, फिगर आउट करना है ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कहीं पे कैसे भी डालो, बट वी नीड टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर देयर, which is this 25% डिक्रीज हुआ है ZAT में, this is the second largest। done? there is done guys। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट,
provided you understand what decline is. Please remember, decline does not mean just the differences. ये 5 lakhs, 5 lakhs, 7 lakhs, 2 lakhs, आप सोचेंगे कि सर सबसे ज्यादा 7 lakhs था, सेकेंड लार्जेस्ट 5 lakhs है, बट 5 lakhs कैट और जैट दोनों में, तो विच वन शुड बी माई आंसर, राइट? दोनों नहीं दे रखे हैं, राइट? जैट अलग आंसर चॉइस है, कैट अलग आंसर चॉइस है. सो व्हाट इज हैपनिंग? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइन, डिक्रीज एज अ कंपैरिजन, वी ऑलवेज टेक इट एज अ परसेंटेज वैल्यू. डन? यस, ब्यूटिफुल गाइस, वेरी गुड. First set successfully done, no hiccups, no issues. Yes, great going guys, super. चलो अब चलेंगे second set की ओर. Yes, because first set अपना warm up कर रहे थे, right? Second में अब हम थोड़ा तेज हो रखे हैं. Yeah, so we're going to go ahead with the second set super fast mode में. Yeah, ये रहा चार्ट. Yes, in a tri-nation series, तीन nations है, उसके series है. The points scored by teams X, Y and Z. So X, Y and Z. X है, Y है, Z है, ठीक है. Was analyzed using the chart below. Each team played with the other team twice, home and away. अब ये क्या है? This is a mix of game and tournaments as well as data interpretation. Bar graph plus game and tournaments है, ठीक है? Each team played twice. इसका क्या मतलब हो गया? For example, मैं आप बता देता हूँ सिर्फ आपको, ठीक है? X है, X will play with Y, X will play with Z. Yes, and what will happen? Y will play with X, Z will play with X. Yes. हर टीम अगर एक एक बार खेलती, each team if they had played only once, we would have only 3 matches, but because each team is playing with the other team twice, X and Y 2 game, X and Z 2 game, and we will have Y and Z 2 game. Yes, so these are all the home matches and away matches. समझ में आ गया? एक मैच होम ग्राउंड में खेलेंगे, एक मैच अवे ग्राउंड में खेलेंगे. Yes, so this is called इसको राउंड रॉबिन बोलते हैं. लीग मैचेस में ऐसे होता है, लीग मैचेस में, नॉकआउट में नहीं. राउंड रॉबिन बोलते हैं, डबल राउंड रॉबिन बोलते हैं, क्योंकि दो मैच खेल रहे हैं. राउंड रॉबिन में एक मैच ही खेलते हैं, जैसे अपने फीफा वर्ल्ड कप में होता है, राइट? ओनली 1 मैच इन द ग्रुप स्टेजेस विद द अदर टीम. यस, जैसे अर्जेंटीना और सऊदी का एक मैच हो गया, अर्जेंटीना एंड द नेक्स्ट टीम एक मैच हो गया, मेक्सिको एक मैच हो गया, ऐसे, राइट? चलो, यहाँ पे 2 मैच हो रहे हैं, ठीक है? सो देयर शुड बी 6 मैचेस according to our calculation. 1 2 3 4 5 6 मैचेस दे रखे हैं, which is a good thing, ठीक है? नेक्स्ट, whichever team scored the most in a match wins it. क्या गेम है पता नहीं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्या है पता नहीं, बट सिंपल सा फंडा है. क्या है कि द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिसके, वो जीत गया, ठीक है? ट्रायंगल इन द ग्राफ. तो अब हमने देखा कि ग्राफ दे रखा है, राइट? फर्स्ट मैच देखो, फर्स्ट मैच क्या है? येलो एंड ऑरेंज. सो येलो इज एक्स, ऑरेंज इज वाई. इसका क्या मतलब है? ये टीम एक्स है, ये टीम वाई है. यस, सो एक्स और वाई का पहला मैच हुआ था. फर्स्ट मैच वाज बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड यहाँ पे कोई ट्रायंगल्स दे रखे हैं. हर मैच में कोई एक टीम के ट्रायंगल है. वो क्या है? ट्रायंगल इन द ग्राफ डिनोट्स द होम टीम. यस, तो इस फर्स्ट मैच में एक्स के होम ग्राउंड में खेला था. व्हेन वाज द नेक्स्ट मैच बिटवीन एक्स एंड वाई? देखो, येलो एंड ऑरेंज का है यहाँ पे, ये रहा वाई, ये रहा एक्स. सेकेंड मैच जो हुआ था एक्स और वाई के बीच में, वो कहाँ हुआ था? वाई के होम ग्राउंड में हुआ था. ये एक्स के होम ग्राउंड में हुआ, ये वाई के होम ग्राउंड में हुआ. ये एक्स का अवे मैच था, ये वाई का अवे मैच है. समझ में आ गया, राइट? सो वी हैड अ वेरी गुड लुक एट द ग्राफ. वी अंडरस्टूड व्हाट द ग्राफ इज. एक्स ये वाई एक्सिस देख लो, पॉइंट्स कैसे चल रहे हैं इन द स्केल ऑफ 200. यस, कुछ दे रखा है इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इन टेंस, कुछ भी नहीं है. सो दीज आर रॉ वैल्यूज, ठीक है? 0 to 200, 200 to 400, 600 एंड सो ऑन. तो पॉइंट्स निकल जाएंगे. यस, माइनर ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज, एंड दीज आर ऑल्सो इन द मिडल. ये मिडल में है, ये वैल्यू मिडल में है, दिस वैल्यू इज अगेन द सेम. बाकी सारे डायरेक्ट मेजर ग्रिड लाइंस में है. डन? यस, तो अब इस डेटा को हम करेंगे क्या? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस डेटा? ये हमें पता चल गया, होम ग्राउंड होने वाला है, अवे ग्राउंड होने वाला है, एक्स और वाई के बीच में मैच, वाई और जेड के बीच में मैच, एंड सो ऑन, राइट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस दो? इसका करना क्या है? वैल्यूज लिखने हैं, नहीं लिखने हैं, ये कैसे पता चलेगा? ओनली एंड ओनली इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस. तो चलो फटाफट से ना पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? वी हैव 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस 1 to 5. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. मैं ऑब्वियसली यहाँ पे पॉज कर दूंगा, मैं ये छुपा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं पॉज करूंगा, मैं आपको पॉज करने के लिए बोलूंगा, ताकि यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस एंड गो अहेड एंड सॉल्व ऑल्सो. अगर जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनको मेरे साथ में करना है, लेट्स डू दैट, ठीक है? इसे मत देखना, ठीक है? अवॉइड दिस पार्ट. 5 क्वेश्चंस है. वी हैव 2 questions theta, which is a very good thing, and 3 MCQs. How many matches did Z win in the home game? तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा पहले कि Z सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंपेयर टू अदर टीम कौन से मैच में था, एंड वो होम गेम होने चाहिए. तो Z के ऊपर ट्रायंगल कितनी बार था एंड कितनी बार वो जीता. दैट मीन्स वी विल नीड द स्कोर्स ऑफ ऑल द मैचेस दैट Z हैज प्लेड. What percentage of the total games played by X did it lose? Yes,
तो सारे गेम्स x के देखने पड़ेंगे टू कंपेयर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेशियो ऑफ द एवरेज पॉइंट स्कोर्ड बाय एट होम एंड अवे. तो y का होम एंड पॉइंट्स के साथ games, then which team is the runner up? Table leader चाहिएगा. Yes, only if we have all the points added, then we can find the runner up. Leader जो table leader होता है, that team is going to be the winner, and जो second आता है, second largest number of points, overall points, that's going to be the runner up. So we need that. And what is the difference between the total points scored by X and Z in the entire series? So we are going to need all of these pieces of information जो हमें चार्ट से मिलेंगे. तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे सामने, पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, we will need to know points, we will need to know home games, away games, we will need to know winners and losers so that we could find out the overall team score, all of that, right? तो उसके लिए चार्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम विद द चार्ट, ये बहुत वेट का चार्ट है ना. इसको देख देख डेटा बार बार निकालेंगे, 5 क्वेश्चंस 5 बार देखना है, 5 बार डेटा निकालना है, becomes very troublesome. Do you agree, guys? So instead, what are we going to do? चार्ट उन्होंने दिया है, वेरी गुड. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन अ टेबल सो दैट वी ओनली हैव टू लुक एट द टेबल और इस बार ग्राफ को जिसमें ट्रायंगल्स है, होम गेम्स है, अवे गेम्स है, विनर्स है, लूजर्स है, ये सब देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल फ्रॉम दिस चार्ट. ठीक है, तो इस टेबल को, दिस इज ओनली डन, ये ध्यान में रखो गाइस, दिस वाज ओनली डन आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चंस. तो अपने क्वेश्चंस देखा और फिर फिगर आउट किया कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस. सो मेक दिस अ हैबिट, ये अपना हैबिट बना लो. Whenever you look at a chart, look at the questions and then figure out what your approach is going to be. ठीक है, तो हमने देखा और फिर फिगर आउट किया कि नहीं यार, ये डायरेक्ट चार्ट से नहीं निकलने वाला है इजीली, सॉरी. बट फिर फर्स्ट सेट में हमने क्या किया था, डायरेक्ट चार्ट से निकाल लिया क्योंकि इजी थे. ठीक है, चलो ये रहा टेबल, राइट? टेबल में मैं क्या बना रहा हूँ, मैच नंबर हो गए 1 से लेके 6 तक सॉरी, मैच नंबर हो गए 1 से लेके 6 तक. फिर होम गेम्स हो गए, अवे गेम्स हो गए. ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टीम. तो जैसे पहला मैच था, फर्स्ट मैच 1 वॉज बिटवीन विच टीम, एक्स एंड वाई. ठीक है, मैच 1 वॉज बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स वॉज द होम टीम, तो यहां पे देखो होम के अंदर मैच 1 में मैं एक्स लिखूंगा, एंड वाई वॉज द अवे टीम, तो मैं अवे में वाई लिखूंगा. एक्स का जो होम टीम थी उसके पॉइंट्स कितनी थी, 200. वाई जो अवे टीम है उसकी कितने पॉइंट्स थे, 400. यस, आ रहा समझ में? अब इससे क्या होगा, दो चीज. वन, वी नो एक्स के होम गेम्स कितने थे, अवे गेम्स कितने थे, कौन से थे. वी नो द पॉइंट्स एंड वी कैन ऑल्सो फिगर आउट द विनर डायरेक्टली, है ना. यहीं पे विनर भी पता चल गया कि विनर वाई था. वाई? बिकॉज वाईज पॉइंट्स आर 400 एंड एक्सेस आर ओनली 200. यस, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर द अदर 5 मैचेस एज वेल. तो मैच 2 का देखो फटाफट. मैच 2 इज बिटवीन वाई एंड जेड. होम टीम क्या है, वाई. जेड होम टीम इज वाई. इसका है 600 एंड इसका है 400. डन. मैच 3 देखो. प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द एक्सेस एंड द वाईज एंड द जेड्स फ्रॉम द कलर्स. ठीक है, सो ब्लू है जेड एंड येलो है एक्स. सो जेड एंड एक्स का गेम था. जेड के होम में, जेड होम एक्स अवे. जेड का स्कोर 200 एंड 400. ठीक है, सो 200 एंड 400. डन, ब्यूटिफुल. नेक्स्ट मैच 4 इज बिटवीन वाई एंड एक्स. वाई के होम में, so this is y this is x. y and x का गेम था एंड y का स्कोर कितना था, 600 एंड 700. 600 700. हम विनर्स का बाद में देखेंगे, एक बार ये चार्ट हो जाए फिर चार्ट को कोपचे में डाल देते. ठीक है, फिर विनर्स में जाएंगे. 5, मैच 5 का क्या सीन है, वॉज बिटवीन z एंड y. z का होम टीम था, सो z एंड y. z का कितना, 600 and 500. yes, so 600 for z and for y it was 500. Done. Match 5 is also sorted. We have match 6 now. Match 6 is between x and z. x का होम गेम था, z का अवे गेम था. x का कितना, 600 and for z it was 500. ठीक है, so 600 points and 500 points. Quickly have a look at this data that we've picked up from the. मैं साइड में चले जाता हूँ, एक बार फटाफट से देख लो क्या ये डेटा जो हमारे टेबल में है, is it correct with respect to the chart? If there are any issues that you have found, drop it in the comments. अगर आपका सही है तो drop a thumbs up. ठीक है, thumbs up डाल देना अगर आपका ये चार्ट सही है. ठीक है, मैच हो रहा है. चलो ये हो गया. अब विनर्स फटाफट फिगर आउट करेंगे. y और z के बीच का y, क्योंकि 600, 200 400 400, 600 700 700, 600 500 600, 600 500 600. yes, so now we have all the 6 games. हम क्या देख रहे हैं
कि x का होम गेम्स कितने हैं, x प्लेज विथ y एंड z दो बार, करेक्ट, 4 गेम खेलता है x प्लेज विथ y एंड विथ z 2 टाइम्स, सो दैट्स 4 गेम्स। आउट ऑफ द 4 गेम्स 2 होम होंगे 2 अवे होंगे, देख लो है x के 2 होम x के 2 अवे, यस सेम वे विथ y एंड z ऑल्सो सेम थिंग होगा, ठीक है। एंड सो ईच टीम प्लेज विथ प्लेज एट इज होम ग्राउंड ट्वाइस एंड अवे ग्राउंड ट्वाइस, ऐसा सीन है, ठीक है। विनर्स भी हो गया सब कुछ, यस। नाउ वी गोइंग टू पुट दिस इन अ लिटिल नीट लुकिंग टेबल, तो ये रहा सेम स्टफ। क्या क्या हो गया यहाँ पे, होम टीम अवे टीम पता चल गई, पॉइंट्स पता चल गए, विनर्स पता चल गए, एंड इंडिविजुअल मैच का समरी भी पता चल गया, डन, यस, ब्यूटीफुल। सो नाउ वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू लुक एट दिस, इसे हम डालेंगे कोपचे में, बिकॉज एवरीथिंग दैट दिस चार्ट हैड टू ऑफर हमने टेबल बना दिया उसका, राइट। तो इस एंटायर सेट में हमारी पूरी मेहनत किस में गई है, ये बनाने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लुकिंग एट द टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे पास इनफ टाइम है टू सिट एंड डू दिस, ओके। चलो, वंस दिस इज डन, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, राइट। ये रहा वो टेबल, बस हमारा ध्यान इसी पे रहना चाहिए अब, नो लॉन्गर एट द चार्ट। 5 क्वेश्चंस है, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड, ठीक है। पहला टीटा क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर टीटा क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, whenever possible आंसर दीज टीटा क्वेश्चंस whether or not you know the answer, ठीक है। अगर ये सॉल्व भी नहीं करते हम, फिर भी 2 टीटा क्वेश्चन है, उसे खाली नहीं छोड़ना। चलो लेट्स आंसर दिस। हाउ मेनी मैचेस डिड Z win इन होम गेम्स, यस। तो Z के होम गेम्स देखने, होम वाले देखेंगे कहां पे Z खेल रहा है, 1 2 Z खेल रहा है। आउट ऑफ द 2 मैचेस Z हैज वन ओनली 1 मैच, एक वो हार गया था X के साथ, दूसरा Y के साथ था जो वो जीत गया था, राइट। सो हाउ मेनी गेम्स हैज Z won in the home games? Only one. Z has won only 1 game at home. समझ में आ गया। एंटर इंटीजर वैल्यू इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, इंटीजर वैल्यू 1 है, 1 खत्म, यस। ऑल गुड गाइस, या ब्यूटीफुल। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो, वंस द चार्ट इज डन, एक बार टेबल बन गया, चार्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन जो फटफट हो जाएंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड बाय एक्स, टोटल गेम्स प्लेड बाय एक्स, तो टोटल गेम्स प्लेड बाय एक्स, कोई होम नहीं कोई अवे नहीं, ठीक है, प्लेड बाय एक्स, डिड इट लूज, एक्स कितने गेम्स लॉस्ट हुआ इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज वैल्यू वी नीड। टोटल हमें पता है हर टीम 4 गेम खेली है, एवरी टीम हैज प्लेड 4 गेम्स, 2 अवे 2 होम, वी नीड टू फाइंड आउट कितने वो लूज करी है, राइट। सो वी हैव एक्स and x, so out of the 4 games that x has played, x has won 1 2 3, 3 गेम x जीत चुकी है, that means 1 game is lost by x, so 1 out of the 4 games that x has played it has lost। समझ में आ गया, yes। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये हो सकती है that instead of dividing it by 4 you end up dividing it by 6 because there were total 6 matches, 6 games, no, read the question carefully, what percentage of the total games played by x, नॉट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल गेम्स, टोटल 6 गेम्स हुए वो नहीं बोल रहे, जिनमें एक्स का कंट्रीब्यूशन था उस गेम के कंपैरिजन में कितने वो हार गया। 1 out of 4 इज व्हाट, 25%, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, 2 5 25 परसेंटेज में ही देना है, इंटीजर वैल्यू बोला है, व्हाट परसेंटेज, सो ऑटोमेटिकली यूनिट जो है परसेंटेज का वो हम नहीं डाल सकते। टीटा क्वेश्चन में नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड, आप ना सिर्फ डेसिमल पॉइंट डाल सकते हैं, नेगेटिव साइन डाल सकते हैं, नथिंग एल्स, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के चक्कर में आप कीबोर्ड को ना हाथ लगा दो, क्योंकि द मोमेंट यू प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड का कोई भी की अगर आप प्रेस कर दोगे, योर टेस्ट विल गेट ब्लॉक्ड, राइट, आपका टेस्ट ब्लॉक हो जाएगा, फिर यू विल हैव टू कॉल द नॉर्मल सेंटर्स में कीबोर्ड नहीं होते, बट जिनमें होते हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू टच इट, क्योंकि कीबोर्ड को अगर आप गलती से कोई भी की दबा दिया और टेस्ट लॉक हो गया, देन इट्स गोइंग टू ईट अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, राइट। पहले आप पैनिक करोगे, यस, यू विल ट्राई थिंग्स ऑन योर ओन, यू विल कॉल योर इन्विजिलेटर, वो आएंगे, वो देखेंगे, वो जाएंगे किसी से डिस्कस करेंगे, देन दे विल कम अनलॉक इट इफ द रीजन इज वैलिड, इफ नॉट दे माइट लेट इट गो ऑल्सो, राइट। सो बी सुपर केयरफुल नॉट टू टच द कीबोर्ड एट ऑल, ठीक है। आपका एक ही दुश्मन है कैट में, वो है कीबोर्ड, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेशियो, तो रेशियो निकालना है किसी चीज का, राइट, रेशियो निकालना है किसी चीज का, ऑफ द एवरेज पॉइंट स्कोर्ड बाय वाई, एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड बाय वाई एट होम, तो ये होम गेम्स का एवरेज स्कोर निकालना है, और ये एवरेज पॉइंट्स बाय वाई एट अवे मैचेस, समझ में आ गया, यस। वाई के होम मैचेस का एवरेज, वाई के अवे मैचेस का एवरेज, उसका रेशियो निकालना है, एंड देन वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। तो पहले ये इस पे ध्यान देते हैं, लेट्स फिगर दिस आउट।
एवरेज क्या होगा हमें पता है, 4 गेम खेलते हैं ईच टीम, 2 होम 2 अवे, सो इसका जो एवरेज होगा इज गोइंग टू बी सम ऑफ द पॉइंट्स एट होम बाई 2 इज टू सम ऑफ द पॉइंट्स एट अवे बाई 2, ठीक है। तो ये बाई टू वैसे भी कैंसिल होने हैं, चलो एनीवे वाई पे फोकस है अपना, 1 2 3 एंड 4। होम का देख लेते पहले, 600 एंड 600, अवे का देख लेते हैं 400 एंड 500, ठीक है। सॉरी क्या कैंसिल करेंगे, 2 2 कैंसिल, 600 600 1200, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 12, 400 500 900, जीरोस कैंसिल, 12 by 9 इज बेसिकली व्हाट, 4 3 टाइम्स इज 12, 3 3 टाइम्स इज 9, 4:3। तो रेशियो क्या है, 4:3। व्हाट इज द रेशियो बेसिकली, 4:3 का मतलब क्या है, दैट 4/3। तो हमारा जो रेशियो है R, यस दिस रेशियो R जिसकी बात कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा, 4/3। 4:3 is basically 4/3, A:B is A/B, रेशियोज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। सो 4/3 क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 1.33, करेक्ट। चेक करना है, चेक कर लो, 4 divided by 3 1.33, यस। नाउ लुक एट द आंसर चॉइसेस, क्या बोल रहे हैं, इज R इक्वल टू 0, क्या R 0 है, नहीं, एलिमिनेट। इज R बिटवीन 0 एंड 0.5, 0 और 0.5 के बीच में, नहीं, आउट। इज R लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, इट्स ग्रेटर देन 1, आउट। सर आंसर इज ऑप्शन डी, R इज ग्रेटर देन 1, डन है, क्योंकि R का वैल्यू 1.333 है विच इज ग्रेटर देन 1, या ये वैल्यू आपको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू हैव दिस सिचुएशन, जब भी आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, ये है आपका रेशियो, R रेशियो इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यस, व्हेनेवर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जब भी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तब आपका रेशियो ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि जब आप 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 टाइम्स 3 वो तो हो गया, एक एक्स्ट्रा बचता है, सो 1 मोर देन 1 into 3, दैट्स द केस, है ना। सेम वे इफ योर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन योर रेशियो इज गोइंग टू बी लेस देन 1। रेशियो इक्वल टू 1 कब होता है, व्हेन योर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इक्वल, है ना, रेशियो बिकम्स इक्वल टू 1, यस। अगर ये है तो हमें ये वाला कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, 4 divided by 3 की भी जरूरत नहीं है, 4 is greater than 3 which means R has to be greater than 1, your answer is option D, done, yes, very good question, provided you are peacefully looking at it and reading it very very carefully, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द विनर ऑफ द सीरीज इज टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हिच टीम हैज वन, विन ना, पॉइंट्स का नहीं है, विन द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स, देन व्हिच टीम इज द रनर अप, यस। तो पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा गेम्स जीत चुकी है, यस। एक्स का देख लेते हैं, वाई का देख लेंगे, जेड का देख लेंगे, अवे होम कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। हमने देखा कि एक्स हैज वन 3 गेम्स, यस 3 गेम्स एंड लॉस्ट 1। वाई का क्या है, वाई हैज वन 1 2, ये है वाई का, नहीं, हार गया वाई, हार गया वाई, हार गया वाई, तो वाई हैज वन 2 गेम्स लॉस्ट 2 गेम्स, यस। एंड जेड का क्या सीन होगा, जेड हैज वन ओनली 1 गेम, जेड सिर्फ एक ही गेम जीता, बाकी तीनों हारा, सो 1 गेम, यस। तो टेबल लीडर कौन होगा, एक्स, टेबल लीडर इज गोइंग टू बी एक्स विद द मोस्ट नंबर ऑफ विन्स, तो ये है टेबल लीडर या विनर, यस। तो रनर अप इज गोइंग टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ विन्स, रनर अप कौन है, वाई। सॉरी गाइस, सो रनर अप कौन है, वाई है, ठीक है, क्लियर है, वाई इज द रनर अप। तो हमने क्या देखा, अवे गेम्स होम गेम्स सब कुछ मिला के देखना है, आउट ऑफ द 4 गेम्स दैट ईच टीम प्लेस कितने जीते हैं कितने हारे, दैट्स इट, ओके, पॉइंट्स मैटर नहीं करते यहाँ पे। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय एक्स एंड जेड इन द एंटायर सीरीज, होम गेम्स अवे गेम्स सबका डिफरेंस निकालना है, एक्स एंड जेड का, एक्स के सारे ऐड करो, जेड के सारे ऐड करो, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर जेड का ओवरऑल पॉइंट ज्यादा है एक्स से तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर, राइट, दैट्स व्हाई पॉजिटिव डिफरेंस। तो एक्स के ऐड करते फटाफट यहीं पे ऐड कर लेते, लिखते नहीं है क्योंकि इजी है। एक्स का 200 प्लस 400 600 प्लस 7, सो 600 जाने दो, 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 6 इज 19, तो 1900, ठीक है। एक्स का देखते फटाफट, जेड का देखते फटाफट, 4 6 12 17, राइट, 1900 1700 टोटल पॉइंट्स है, माइनस करेंगे 200 इज आवर आंसर, इजी।
यस तो आपने अभी नोटिस किया होगा कि कैसे एक चार्ट पे जब हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो फटफट से हो जाते हैं. ईच क्वेश्चन वुड हार्डली टेक अस लेस देन 30 सेकंड्स क्योंकि वी इन्वेस्टेड सो मच टाइम ऑन द चार्ट ऑलरेडी. राइट तो दो तरीके के चार्ट्स होते हैं इन डेटा इंटरप्रिटेशन. वन वेयर नॉट जस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर में भी ऐसा ही है, एलआरडीआई में ऐसा ही है. सेट दो टाइप के होते हैं. पहला सेट होता है जो सेट इजी होता है बट क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा. सेकंड सेट में क्या था, सेट कॉम्प्लेक्स था बट क्वेश्चंस इजी है. So to strike that balance, right, they'll do that. The worst kind of set is where the set is also difficult and the questions are also difficult. ठीक है, वैसे वाले को छोड़ के आना है without any regret, without thinking twice, without feeling bad about it. छोड़ के आना है वैसे वाले. Okay, done. Superb guys. So we've answered all the 5 questions. 200 ये रहा. With this अपना बार ग्राफ का सीन खत्म. Right? You have to keep in mind all of these points. ये मैं हर क्लास के बाद में बोलता हूँ. Most of the cases these are similar points only, but you have to keep them in mind. Okay, keep in mind. क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस, यूनिट्स, स्केल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेबल्स, कीज, लेजेंड्स, एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब कुछ ध्यान से पढ़ना है. वेरेवर पॉसिबल मेक द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ताकि आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं. थर्ड, रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द सेट चार्ट. जो भी डेटा आपको दिया उसको पढ़ने के इमीडिएटली बाद हैव अ लुक एट ऑल द 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस है, हैव अ लुक एट दैट सो दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, आपका आगे का अप्रोच क्या होना चाहिए. कई बार कुछ इंफॉर्मेशन जो वो हिडन होती है इन द क्वेश्चंस, ईस्टर एग बोलता हूं मैं उन्हें. राइट, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन सो दैट यू नो व्हाट योर अप्रोच शुड बी एंड प्लीज रिमेंबर टू सॉल्व द डीपीपीज. राइट, डीपीपीज वे पुटिंग अप डीपीपीज फॉर एवरी लेक्चर. जैसे बार ग्राफ के डीपीपीज है, पुराना पाई चार्ट के अलग से डीपीपीज है. वे पुटिंग अप डीपीपीज सो दैट यू कुड गेट यूज्ड टू दीज कॉन्सेप्ट्स. राइट, तो जैसे जैसे हम बेसिक्स, इंटरमीडिएट, एडवांस में जाएंगे तब ये डीपीपीज ही आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा. राइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व दीज डीपीपीज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज डीपीपीज, रिगार्डिंग बार ग्राफ, रिगार्डिंग एलआरडीआई और एनी क्वेश्चन दैट यू थिंक आई वुड बी एबल टू हेल्प यू इन आंसरिंग, फील फ्री, उसे कॉमेंट्स में डालो and I will find out relevant comments and I will definitely answer to them. Done. And also do let me know if you want me to change anything in the session. Language का मत बोलना. I'm trying to keep strike a good balance between Hindi and English. उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो आपको जो टेस्ट होगा, कैट जो होगा वो हिंदी में नहीं होने वाला, वो इंग्लिश है. सो प्लीज गेट यूज टू इंग्लिश. ठीक है, वर्बल का सेक्शन अलग से होगा जो इंग्लिश में होगा. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग यूज टू इंग्लिश बाय नाउ, 10 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा तब बहुत दिक्कत होने वाली है. राइट, इसीलिए मैं इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा सा हिंदी मिला रहा हूं ताकि यू नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट यू कैन कैच अप ऑन इट. बट प्लीज स्टॉप आस्किंग मी टू टेक द एंटायर सेशन इन हिंदी. पूरा सेशन में हिंदी में लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आपको 10 महीने बाद टेस्ट में दिक्कत होगी कि सर ये आपने हिंदी में तो समझाया था बट ये क्वेश्चन इंग्लिश में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. समझ में आ गया. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी अगर चेंजेस करने हैं, कुछ भी अगर ऊपर नीचे करना है, प्लीज फील फ्री एंड लेट मी नो. आई विल टेक टू कंसिडरेशन योर सजेशंस. Thank you so much guys for being a part of the session and this entire series. I will hopefully meet you again in the next session. Until then keep learning and don't forget, डरने की क्या है बात जब MBA वाले हैं आपके साथ.